Hello, at class. This is your mathematics, and we are going today to start our chapter number 1, exercise 1.D. Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 1.D. Now you will see in page number 14 of your book, multiplication of rational numbers. If P upon Q and R upon S are any two rational numbers, बेटा हमारे पास टू रैशनल नंबर्स दिए हों तो हमें उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, P इंटू आर अपॉन आर इंटू एस. फॉर एग्जाम्पल, नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज आवर -3/7 मल्टीप्लाई 14/5. इस एग्जाम्पल में बेटा -3 मल्टीप्लाई 14 मीन्स जो हमारे न्यूमिनेटर हैं उनको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमीटर की जगह मल्टीप्लाई करेंगे. सो आवर आंसर इज -6/5. नाउ बी पार्ट इज आवर -11/9 मल्टीप्लाई -51/44. सो -11 मल्टीप्लाई -51/9 मल्टीप्लाई 44. सो आवर आंसर इज 17/12. Now start the properties of multiplication of rational numbers. First property is closure property. The product of two rational numbers is always a rational number, i.e. rational numbers are closed under multiplication. इस प्रॉपर्टीज़ में बेटा क्या कहा जा रहा है, अगर हमारे पास टू रैशनल नंबर्स हैं और हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स उनकी प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर्स में होगी. Here are example, -11/13 multiply 2/5. So answer is -22/65, which is a rational number. Now second property is communicative property. Two rational numbers can be multiplied in any order, i.e. multiplication of rational numbers is communicative. यहाँ पर हमें टू रैशनल नंबर्स दिए गए हैं. If we P upon Q multiply R upon S equal to R upon S multiply P upon Q. यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है बेटा, अगर हम P upon Q को R upon S से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो उसके R upon S मल्टीप्लाई P upon Q के होगा. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. If we product 3/5 multiply 5/9, so our answer is 5/6. If other side we multiply 5/9 multiply 3/2, so our answer is also 5/6. Now property third, associative property. Three or more rational numbers can be grouped in any order to find their product, i.e. rational numbers are associative under multiplication. इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है बेटा, अगर हमारे पास थ्री रैशनल नंबर्स हैं और हम उनकी प्रोडक्ट इस प्रकार करते हैं लाइक P upon Q multiply R upon S then multiply T upon U. So answer is equal to P upon Q multiply R upon S multiply T upon U. Here are example. If we product first -5/2 multiply -7/4 and then multiply 1/3. So our answer is 35/24. Now the other side, if we multiply first -7/4 multiply 1/3 then multiply -5/2. So our answer is also 35/24. So both are same. Now fourth property, existence of multiplicative identity. The product of one and any rational number is the rational number itself. If P upon Q is any rational number, then P upon Q multiply 1 equal to 1 multiply P upon Q equal to P upon Q. In this property क्या कहा जा रहा है बेटा, अगर हम किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही रैशनल नंबर आएगा. Here are example, 3/4 multiply 1 equal to 3/4.
and then 1 multiply 3 upon 4 equal to 3 upon 4. Now fifth property, existence of multiplicative inverse. For every non-zero rational number, there exists its inverse such that the product of a rational number and its inverse is 1. If P upon Q is a rational number, there exists is a rational number Q upon P such that P upon Q multiply Q upon P equal to Q upon P multiply P upon Q equal to 1. अगर हम किसी रैशनल नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमेशा 1 आएगा. नाउ प्रॉपर्टी 6, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो. The product of a rational number and 0 is always 0. If P upon Q is any rational number, then P upon Q multiply 0 or 0 multiply P upon Q equal to 0. अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 ही होगा. नाउ सेवंथ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. The multiplication of a rational number is distributive over their addition. If P upon Q, R upon S and T upon U are any three rational numbers, then P upon Q multiply R upon S plus T upon U equal to P upon Q multiply R upon S plus P upon Q multiply T upon U. Here are example. इसमें क्या कहा गया है बेटा, अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं और अगर हम लास्ट 2 के प्लस करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होगा, अगर उसके अपोजिट साइड हम देखें तो अगर हम फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करते हैं, सो आवर आंसर इज सेम. Here are example, 3 upon 4 multiply 5 upon 6 plus 1 by 2. So our answer is 1. Now other side, if we product of 3 upon 4 multiply 5 by 6 then plus 3 upon 4 multiply 1 by 1 by 2. So answer is 1. Now start the exercise 1.D, page number 17. Question A. Select the correct answer. यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा और साथ में आपको ऑप्शंस दी गई हैं, जो आपकी करेक्ट होगी उस पर आपको करेक्ट का निशान लगाना है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/7 इज. यहाँ पर आपको इसका इन्वर्स निकालना है. सो पहले हम इसको सोल्व करते हैं. -1 multiply 7 equal to 7, देन +1 equal to 8. सो -8 upon 7 और बेटा इसका इन्वर्स क्या होगा, 7 upon -8. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 देन मल्टीप्लाई 4/3. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 9 upon 16 multiply 4 upon 12 plus 9 upon 16 multiply -3 upon 9 is equal to. So इस क्वेश्चन में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रोडक्ट 9 upon 16 multiply 4 upon 12, so answer is 3 upon 16. Then 9 upon 16 multiply -3 upon 9, so our answer is -3 upon 16. So 3 upon 16 plus -3 upon 16, so our answer is 0. So D option is correct. Hello 8th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 1.D. A part is 1/8 by
5/11. So multiply 1/8 multiply 5/11 equal to 5/88 answer. Now B part is our 3/5 by -7/8 equal to 3/5 multiply -7/8 equal to our answer is -21/40. Now C part is our -5/9 by -11/32. So -5/9 multiply -11/32. So our answer is 55/288. Now D part is our 18/35 by -3:1/8. So equal to 18/35 multiply -25. कैसे है बेटा 25? 8 multiply 3 plus 1. So 25/8. Now यहाँ पर हमें इन्हें कट करना है. So our answer is -45/28. Now question 2. Simplify the following and find the product as a rational number in standard form. So A part is -13/15 multiply -25/26. So यहाँ पर बेटा हमें इनको कट करना है. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड यहाँ पर हमने कट किया है 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25. सो ऊपर हमारा क्या नंबर आ गया 1 multiply 5 equal to 5 एंड नीचे 3 multiply 2 equal to 6. सो आवर आंसर इज 5/6. ऐसे ही हमें इनको कट करके हमारा आंसर फाइंड करना है. नाउ बी पार्ट इज -10/9 multiply 21/-4. So our answer is 35/6. Now C part is our 3/11 multiply -5/6 multiply -22/9. So our answer is 5/9. Now D part is our 9/-14 multiply -1/7 then multiply -2/3. So our answer is -3/49. Question 3. Find the multiplicative inverse of the following. So A part is 16. So 16/1 then inverse is 1/16. Now B part is -1. So -1/1. So its inverse is -1. C part -1 is to 1/8. So बेटा इसमें पहले हम सिंपली फ्रैक्शन करेंगे. So 8 multiply 1 equal to 8 then plus 1 equal to 9. So -9/8 and then its inverse is -8/9. Now D part same 3 is to 1/3. So 3 multiply 3 equal to 9 plus 1 equal to 10. So 10/3. Now its inverse is 3/10. Answer. Now start fourth question. Verify the property x multiply y equal to y multiply x of rational numbers by using. इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये जो प्रॉपर्टी दी गई है इसको वेरीफाई करना है. सो स्टार्ट ए क्वेश्चन. x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 1/2. यहाँ पर आपको x 7 दिया गया है और y 1/2 दिया गया है. तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x मल्टीप्लाई y और राइट हैंड साइड है हमारी y मल्टीप्लाई x. तो x हमने x की जगह बेटा हमें 7 रखना है और y की जगह हमें 1/2 रखना है और ऐसे करते हुए हमें इसको सोल्व करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1/2. सो सोल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा 7/2 और आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 7. सो इट्स आंसर इज also 7/2. So left hand side equal to right hand side, hence proved. Now same B part, x equal to 2/3 and y equal to 9/4. So ये क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ही करना है बेटा. x की जगह आपको 2/3 रखना है और y की जगह आपको 9/4 लिखकर इसको सॉल्व करना है. नाउ सी पार्ट में बेटा x इक्वल टू -5/7 एंड y इक्वल टू 14/15. सो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में
जिस प्रकार हमने ए और बी पार्ट करे थे, सिमिलरली हमें सी एंड डी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z ऑफ रैशनल नंबर्स बाय यूजिंग। सिमिलरली बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉपर्टी चेंज करके दी हुई है और आपको सिमिलरली x y z की वैल्यू पुट करके और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। सो ए पार्ट इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1/2 एंड z इक्वल टू 1/4। सो लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है, पहले हमें y मल्टीप्लाई z करना है और उसके बाद x से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिखना है। और राइट हैंड साइड में हमने पहले x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और देन मल्टीप्लाई बाय z। सो लेट लेफ्ट हैंड साइड x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। सो x इज 1 एंड y इज -1/2 एंड z इज 1/4। सो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू रख ली है और हमारा आंसर सोल्व करके आया है -1/8। नाउ राइट हैंड साइड यहाँ पर हमने x y z की वैल्यू रखी है और इनको सोल्व किया है। पहले हमने 1 मल्टीप्लाई -1/2 किया तो हमारा आंसर आया -1/2 और फिर मल्टीप्लाई किया 1/4 से तो हमारा आंसर आया -1/8। सो फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी उसका आंसर भी हमारा -1/8 है और राइट हैंड साइड में भी हमारा -1/8 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार हमें बी पार्ट भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई y प्लस z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई z ऑफ रैशनल नंबर्स बाय यूजिंग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा आपको ये जो प्रॉपर्टी दी गई है सिमिलरली इसको वेरीफाई करना है। सो ए पार्ट आप देखेंगे x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 3/4, z इक्वल टू 1/4। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे पहले x मल्टीप्लाई ब्रैकेट y प्लस z ब्रैकेट क्लोज। सो इसमें हमें क्या करना है, पहले y प्लस z को हमें प्लस करना है और देन मल्टीप्लाई करना है x से। सो -1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/4 प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज। सो पहले हमें 3/4 प्लस 1/4 करना है। सो आवर आंसर इज 4/4 एंड अदर साइड इज -1/2 मल्टीप्लाई, हमें अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा वो आ गई -1/2। राइट हैंड साइड x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई z। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले हमें x को y से मल्टीप्लाई करना है, देन x को z से मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आंसर आएगा बेटा उन दोनों को हमें प्लस करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू इसमें रख लेंगे। सो -1/2 मल्टीप्लाई 3/4 देन प्लस -1/2 मल्टीप्लाई 1/4। सो हमारा आंसर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया -3/8 देन प्लस -1/8। सो अब हमें इनको आगे सोल्व करना है तो -3 -1/8। सो आवर आंसर इज -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार हमें बी क्वेश्चन करना है बेटा। x हमें दिया हुआ है -2/3, y इज -4/6 एंड z इज -7/9। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, राइट हैंड साइड लिखनी है और x y z की वैल्यू पुट करते हुए इनको सोल्व करके हमें दिखाना है बोथ साइड्स आर इक्वल। नाउ सी इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आपको यहाँ पर हर एक जो कोई पार्ट्स है उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट ए पार्ट। 9/13 मल्टीप्लाई 12/11 इक्वल टू 12/11 मल्टीप्लाई 9/13। तो बेटा इस प्रॉपर्टी का आपको नाम लिखना है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे इसमें क्या है, -6/7 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 6/11 इक्वल टू -6/7 मल्टीप्लाई 5/8
देन मल्टीप्लाई 6 अपॉन 11। तो बी प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी थी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इसमें करना क्या है बेटा, ये क्वेश्चन आपको लिखना है जैसे आपने बी पार्ट लिखा एंड उसके आगे आपको लिखना है प्रॉपर्टी का नाम। सो बी पार्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू 3/14 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट 2/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 2/11 इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 2/11। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ ई पार्ट आप देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 6/5 इक्वल टू 6/5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटेंशंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ बी पार्ट एफ पार्ट इज आवर -7/8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व करना है। सो ए पार्ट इज 3/5 मल्टीप्लाई 35/24 प्लस 10/1। सो इन दिस क्वेश्चन वी सॉल्व फर्स्टली ब्रैकेट। सो ब्रैकेट सॉल्व करते हुए हमें हमारा जो आंसर आया वो आया है 275/24। इसको फिर हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ गया 55/8। नाउ बी पार्ट इज आवर -5/4 मल्टीप्लाई 8/5 प्लस 16/15। सो सॉल्व ब्रैकेट, then our answer is 24 plus 16/15 and then solve again 40/15. Now multiply -5/4, so cut 5 1 जा 5 and 5 3 जा 15 and 4 1 जा 4 and 4 10 जा 40. So multiply 10 minus 1 equal to -10 and 3 multiply 1 equal to 3. So our answer is -10/3. Now C part 2/7 multiply 7/16 minus 21/4. So solve first bracket. Now 7 minus 84/16, then solve again minus 77/16. So cut both sides. So our answer is -11/8. Similarly E part D part 3/4 multiply 8/9 minus 40/1. So solve firstly bracket, then answer is -88/3. Now question number 9, find the product of additive inverse and multiplicative inverse of -1/3. So additive inverse of -1/3 is 1/3 and multiplicative inverse of -1/3 is -3. Now product of both 1/3 multiply -3 equal to -1 is our answer. Now question number 10, how much distance will a train cover in 3:1/3 hours if it maintains a constant speed of 80:1/4 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में बेटा आपको ट्रेन का डिस्टेंस निकालना है। आपको टाइम दिया हुआ है एंड स्पीड दी हुई है। सो टाइम इज आवर 3:1/3 हावर। नाउ इसको सिंपली फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारा टाइम आ गया 10/3 हावर। नाउ स्पीड 80:1/4 किलोमीटर पर हावर। इसका सिंपली फ्रैक्शन करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 321/4 किलोमीटर पर हावर। नाउ डिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सो स्पीड इज 321/4 एंड टाइम इज 10/3. Now multiply both, so our answer is 267.7 kilometer. Children, now your exercise 1.D is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you, students.